Okay, we will skip chapter 12. It's something that you all can take some time to read and go through yourselves. और 12वें पाठ को हम नहीं देखेंगे क्योंकि 12वां पाठ जो है वो आप निजी तरीके से पढ़ने वाली है, वो आप अपने निजी तरीके से पढ़ें और उसमें जो दिए गए बातें हैं उसको आप जानकार बन जाएं। So chapter 13 is about maintaining boundaries. 13वां पाठ जो है 138, 13वां पाठ जो है सीमाओं को लागू करके रखने के विषय में है। So let's talk a little bit about boundaries. कुछ सीमाओं के विषयों में हम बातचीत करेंगे। Where have you noticed boundaries in life? और अपने जीवन में कहां-कहां आपने सीमाओं को देखा है? In the house. Very good. घर के अंदर। And why do we keep boundaries in the house? और हम घर के अंदर सीमाएं क्यों रखते हैं? घर में सीमाएं क्यों बनाकर रखते हैं? Some is permitted for the girl and something is not permitted for the boy. This is boundary. No, why are there boundaries in in your house? Why is there a gate? Why is there a wall? That boundary I'm talking about. आपके घर में जो सीमाएं हैं वो क्यों बांध के रखते हैं? दीवार, दरवाजा। For your protection. सुरक्षा के लिए। Right? And it's something that is necessary that we have to maintain for protection. और वो ऐसी चीजें हैं ताकि हमें सुरक्षा प्राप्त हो सके। So even if a man and a woman are married, it does not automatically keep them away from any other emotional or sexual affection to other people. और even though a man and a woman are married, जब एक पति या पत्नी वैवाहिक हो, it does not automatically keep them away from other sexual or emotional attractions. और उनको दूसरे यौन संबंधित या दूसरे लोगों के प्रति जो आकर्षण होता है उसमें से वो दूर नहीं रख सकता है। So a married person can feel attraction to another person. और दूसरे एक वैवाहिक व्यक्ति के अंदर भी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो सकता है। So when people get into extramarital affairs, जब लोग शादी के बाहर के रिश्तों में फंस जाते हैं, they are not getting into with the what do you say, the decision to have an extramarital affair. वो लोग उस निर्णय के साथ नहीं करते हैं कि उनको एक विवाह के बाहर एक रिश्ता होना है। It happens very very casually. वो जो है साधारण तरीके से हो जाता है। You develop feelings for somebody in a very very casual way. और वो जो है एक साधारण तरीके से या अनौपचारिक तरीके से जो है वो रिश्ता बन जाता है। And we will look at that in a little detail later. हम जो आगे चल के उसके और गहराई में उसमें देखेंगे। So when we are married, we must remember that there is no automatic protection. और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम शादीशुदा हो जाते हैं वहां पे अपने आप से एक सुरक्षा नहीं आरंभ हो जाता। We have to guard our minds and our emotions and our desires. हमारे इच्छाओं को, हमारे सोच विचार को, हमारे भावनाओं को हम अपनी तरफ से सुरक्षित रखना है। Even if you are the most spiritual person, यदि आप सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, you can still fall in this area of sexual sin. और आप तब भी इस लैंगिक
पाप में फंस सकते हैं। And we must recognize that it can be a very dangerous thing if we do not stay protected. और ये हमें ध्यान रखना है या समझना है कि ये बहुत खतरनाक बात है यदि हम अपने आप को सुरक्षित ना रखें। So the Bible talks a lot about the seductive woman. और परमेश्वर का वचन में बहुत जगह पर दिया हुआ है जहां पे जो भ्रमाने वाली स्त्री के विषय में। Now, I don't want you to mistake that only women are seductive. अब मैं ये भी आप लोगों के बीच में समझाना चाहती हूँ कि ये चिंता में ना रहें कि स्त्री ही है जो भ्रमाती है, Even men can be seductive. और पुरुष भी भ्रमित कर सकते हैं। Okay. Now, we must, especially in our time and age, और इस युग और समय में we must be aware that there are many extramarital affairs that happen even in the church. और कलीसिया के अंदर भी कई जगहों पर है जहां पर वैवाहिक जीवन के बाहर के संबंध होते हैं। In the name of ministry, people come together and have begin to flirt with one another. और सेवकाई के नाम से एक दूसरे के साथ आते हैं और उसके बाद जो है एक दूसरे से उस मोहक बातों में फंस जाते हैं। So we've got to be careful because the enemy is prowling around to see who he can devour. और हमें बहुत सचेत रहना है क्योंकि दुष्ट जो है ये सोच में है किसको वो अपने और फंसा लें। Okay. Now let's look at how generally extramarital relationships happen. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से वैवाहिक जीवन के बाहर के रिश्ते होते हैं। So usually it is a process. वो एक क्रिया है। It's a slow move from friendship into a strong emotional entanglement. और वो जो है एक मित्रता के साथ, एक दोस्ती के साथ शुरू होकर और वो जो है एक घनिष्ठ रिश्ते की ओर जाता है। So sometimes it's just developing a friendship. Maybe you call someone once in a while, you go out for a coffee. और हो सकता है कि आप एक आध बार उनको फोन करें, फिर एक आध बार उनके साथ कॉफी पीने के लिए जाएं। And then you begin to open up and talk about emotional struggles or emotional problems. और उसके बाद जो है आप खुलकर जो है अपनी भावनात्मक बातों के बारे में बांटना शुरू करते हैं। And then slowly you always want to talk to the other person, so you feel entangled with the other person emotionally. और आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होता है कि हमेशा वो व्यक्ति के साथ बातचीत करना है और उस बातचीत के द्वारा जो उस प्रकार से आप एक दूसरे के साथ उलझे रहना चाहते हैं। From there, you may want to show physical affection and then it moves into sexual involvement. और उस के बाद उस उलझे रहने की अवस्था से आप जो है एक दूसरे के प्रति शारीरिक स्नेह की ओर जाना चाहने लगते हैं और उसके बाद जो है लैंगिक भागीदारी में प्रवेश हो जाते हैं। So why do people get into extramarital affairs? Let's look at some reasons. और क्यों लोग जो हैं वैवाहिक जीवन के बाहर के रिश्तों में पड़ जाते हैं, हम उसके कुछ कारणों को देखेंगे। It could be one, because there is emotional distance between the couple. और इस कारणवश हो सकता है क्योंकि जोड़े के बीच में एक मानसिक दरार हुआ है। Or there is one of the spouses feel unloved by the other spouse. और इस प्रकार से भी हो सकता है कि एक जीवन साथी को दूसरे जीवन साथी के पास से प्रेम कम मिलता हो। Or there's a sense of rejection. या फिर ऐसा हो सकता है कि एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी का तिरस्कार या त्याग करते हैं। There can be unmet needs, emotional needs.
और ऐसे भी हो सकता है कि जो भावनात्मक रीति के जो जरूरतें हैं वो पूरा ना हुआ हो, or unfulfilled expectations. और जो उम्मीद किया गया है वो उम्मीद पूरा ना हुआ हो. Then maybe some teenage love affairs that blossom once again. कौमारिक जो अवस्था में जो का संबंध था, अचानक से वो फिर से अंकुरित हो गया हो. Or there can be very poor commitment to spiritual things of God. और बहुत ही बुरा एक समर्पण हो परमेश्वर के कार्यों के प्रति. Or it can be those who just want to seek some new excitement and novelty. और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को एक नए बातों में अच्छा आनंद आता हो या एक नए रिश्ते को बनाने में इच्छा हो. So we need to know to be how we must be on guard. और हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें. And one of the examples we see in the Bible is of David. और एक उदाहरण हम देख सकते हैं वो है दाऊद का. So when we look at 2 Samuel chapter 11, हम जब दूसरा समूएल 11वां अध्याय में देखते हैं, if you look at the first verse, हम पहला पद को हम जब देखते हैं, can somebody read that? वो दूसरा समूएल 11 का पहला. और साल का वह समय जब फिर आया, अमोनियों के आक्रमण की साल गिरा था, तब दाऊद ने योआब को और उसके संग इजराइल के योद्धाओं को पूरी शक्ति से अमोनियों को नाश करने भेजा. उन्होंने रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया. So where was David? दाऊद कहाँ था? And where was his army? और उसका सैनिक दल कहाँ था? युद्ध में. They were at war. वो लोग युद्ध में थे. And what is David doing? और दाऊद क्या कर रहा है? He is taking a stroll on the terrace. और छत पर जो है टहल रहा है. So what is it? What does this tell us? ये हमें क्या दिखाता है? बोलता है हमसे That there can be times when we are in our greatest victory, ये हमसे बताता है कि हम जो है हमारे उच्च श्रेणी के विजय में हो सकते हैं. we sometimes may not keep our hearts guarded. और कभी कभी जो है हम अपने हृदय को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं. And that's what you see here, right? He was looking around, and that's when he saw Bathsheba. और यहाँ वो बताया गया है कि वो यहाँ वहां देख रहा था, तब वो बतशीबा को देखता है. So we've got to be on guard whether we are in our best of victories or when we are in the worst of crisis. और हमें ये सुरक्षित रहना है कि क्या हम हमारे ऊंचे विजय में हैं या सबसे गिरी हुई परिस्थिति में हैं. That's when we don't have good judgment and we make wrong choices. और यही है कि हम सही न्याय नहीं करते हैं और गलत चुनाव कर लेते हैं. And we fall into sin. और हम पाप में गिर जाते हैं. So it is important to be on guard, especially when we have victories or when we have crisis. और हमें इसलिए सुरक्षित रहना है जब हमें विजय मिले या हम परास्त हों. Because it can just be that one moment of weakness that will change a whole lot of things for us. और एक क्षण भर का वो समय होगा जब बहुत कुछ बदल सकता है. Okay? ठीक है. Now the Bible talks a lot about adultery. और परमेश्वर का वचन जो है व्यभिचार के विषय में बहुत ज्यादा बातचीत करता है. And you will find these verses in Proverbs chapter 5 as well as Proverbs chapter 6. I'm not going to go into detail. और यहाँ पर नीति वचन 5 और नीति वचन 6 में इसके विषय में दिखा हुआ है, जिसके गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे. But what it says is that adultery is like a cheap
उसमें आग रख दे और उसके कपड़े ना जले। What does it say? Can you build a fire in your lap? Can you put fire on your lap? उसमें क्या लिखा हुआ है कि क्या कोई गोद में आग रख सकता है? क्या कोई गोद में आग रख सकता है? You will burn yourself. आप अपने आप को जला देंगे। Verse 28, please read that. 28 पढ़िएगा। क्या हो सकता है कि कोई नंगे पांव अंगारों पर चले और उसके पांव ना जले? You will burn your feet. आप अपने पांव को जला देंगे। Okay. So what does it say? Verse 33. What will happen if you get into adultery? क्या होगा अगर उस व्यभिचार में अगर फंस जाए? ऐसे व्यक्ति को खुद से नाक काली आंख की अपेक्षा करना है, उसका अच्छा नाम बदनाम होगा। Read 34 and 35. चौदह धोखाधड़ी कभी भी पड़ता है, बदले की आग से भरकर वक्त नहीं पहुंचेगा। चाहे तो कुछ भी करे या करे, वह नहीं पाएगा। Okay. So nothing, you cannot escape adultery. Consequences of adultery. और जो व्यभिचार के द्वारा आने वाले जो फल है उससे आप छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते। So let's understand that it is a very serious thing and we cannot make excuses. और हम समझ जाए कि ये जो है एक बड़ी ही सीरियस बात है, इससे हम बच नहीं सकते। Okay. Now just caution for the women in this house. यहाँ पे बैठे हुए स्त्रियों के प्रति एक सचेत होने वाली बात। So women, whether you are single or whether you're married, आप विवाह किए हो या अविवाहित हो, always stay on guard. हमेशा अपने सुरक्षित रहें, Because there can be people who want to violate you and use you for their needs. और हमेशा ये याद रखें कि ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की उम्मीद में रहेंगे। So always stand strong. हमेशा मजबूत खड़े रहें। Don't fall for flirtatious words from others. और कभी भी छिपी छुपी बातों के में गिर ना जाए। When they say you look so beautiful, जब आपसे कोई बोले कि आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, this color dress suits you very well. और ये कपड़ा जो रंग है तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, You wear this and come every day. I want to see you like this. और आप हर दिन इस कलर को पहन के आइए, आपको इस प्रकार से मैं देखना चाहता हूँ। I want you all to be careful. मैं चाहती हूँ कि आप लोग सतर्क रहें। It may feel very nice that someone is observing. और ये अच्छा है कि कोई आपको It may be nice. ठीक है, सॉरी, ऐसा हो सकता है कि can you repeat that sentence again? It may be nice that they say something nice about you. ये ऐसा हो सकता है कि अच्छा है कि वो लोग आपके बारे में अच्छा बोले, But you always have to be understanding of intentions. और लेकिन हमेशा उनका उद्देश्य क्या है इसको बोलने का, उसके बारे में आपको समझ होना चाहिए। Okay, so you have to keep your boundary protected. आपको जो है अपने सीमाओं को सुरक्षित रखना है या सतर्क रखना है। All right, I'm telling you this because I'm a woman myself. मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं स्त्री हूँ। And I've also faced difficulties like this in my years of growing.
और जैसे मैं बढ़ रही थी उस समय में मैंने भी ये परेशानियों को देखा है, सामना किया है। They may be the most spirit-filled boys in your church, हो सकता है वो आपके कलीसिया के सबसे धार्मिक व्यक्ति हो, but you should always keep your boundaries very, very clear. और लेकिन आप जो है हमेशा जो है अपने सीमा को सही रीति से सुरक्षित रखना है। Any physical affection happens only after marriage. और कोई भी शारीरिक जो करीबी है वो विवाह के बाद ही होता है। All right, ladies? ठीक है। And at the same time, to the men, और उसी समय पर आदमियों से God has given you a responsibility परमेश्वर ने आप लोगों को एक जिम्मेवारी दिया हुआ है uh, to hold your desires and appetites well. आपके इच्छा और आपके भूख, शारीरिक भूख को सीमित में रखें। When you are in what do you say, interaction with someone of the opposite sex, जब आप एक दूसरे हमसे दूसरे अलग ऑपोजिट interaction with girls, दैट इज बेटर, जब स्त्रियों से वार्तालाप में हो, you should also maintain your boundary. और आपको भी अपना सीमा नहीं तो दायरे को रखना है। It is not you should not take permission to violate the physical space of a lady. और आपको ये अनुमति नहीं लेना है कि जो शारीरिक अंतर है उसको खत्म कर दे, Because God honors a righteous heart. क्योंकि परमेश्वर जो है एक धार्मिक हृदय को मान्यता देता है। And God will honor you when you establish those boundaries, even in your interaction with women. और जब आप आपके एक स्त्री के साथ वार्तालाप करने के समय पर भी जो उसमें मान्यता परमेश्वर देखता है। All right, y'all are my young brothers and sisters, and I have the spiritual headship to tell you this. और आप लोग मेरे छोटे भाई और छोटी बहनें हैं, और मेरे पास आत्मिक वो अधिकार है ताकि आपको बोल सकूं मैं। Even especially in a church community, प्रत्येक तरीके से एक कलीसिया के परिस्थिति में we see violation happen among leaders to young people. और हम देखते हैं कि बड़े अगुवे जो होते हैं वो उनके कलीसिया के सदस्यों के प्रति। So if you are careful to honor your own vessel, आप अपने आप को अगर संभालने को तैयार हो, nobody can violate you, कोई भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर even सकता, if they are a church leader. चाहे वो कलीसिया के अगुवे क्यों ना होने दो। Okay? All right. ठीक है? Okay. And the next thing that maybe for the girls, for the women also, is to ensure that you dress modestly. और दूसरा अंक जो है स्त्रियों के प्रति किस प्रकार से आप भले रह सकते हैं वो है शालीन वस्त्र का धारण करें। It is true that generally men are turned on sexually by what they see women wearing. और ये साधारण तरीके से होता है कि जो एक स्त्री किस प्रकार के कपड़े पहन के आती है उस प्रकार से वो एक आदमी जो है उसके प्रति मोहक हो जाता है। So it is perfectly okay to dress up well, to put makeup, all of that is, there's no problem in all of that. और आप को अच्छे वस्त्र पहने, सौंदर्य के सामान इस्तेमाल करें, उसमें कोई गलती नहीं है। But to keep your to keep your clothing modest and to keep it pure so that it doesn't catch the attention of people around. और आपका जो कपड़े पहनने, वस्त्र पहनने के रीति है वो शालीन हो, अच्छा हो, इस प्रकार से हो कि दूसरों का ध्यान उस आपकी ओर ना खींचे। Okay? ठीक है? Any question?
कोई सवाल? Any question? कोई सवाल इस साइड और उस साइड, दोनों साइड? Yes. वो माइक ले लीजिए कृपया करके, माइक दे दीजिए कृपया करके। मैम, हमारा क्वेश्चन है, बहुत से ऐसे सेवक हैं जो कि सेवकाई में रहते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे पाप में गिर जाते हैं, कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? आपका जो पाप है उसको बौद्धिक रीति से सोचना नहीं है। Like, for example, I got into this relationship because of her. और ये नहीं बोलना है मैं इस रिश्ते में फंस गया उसके कारण से, Or because my marriage is loveless. और मेरा वैवाहिक जीवन जो है प्रेम रहित है। We should get rid of lies. और हम जो है झूठ से स्वतंत्रता पाना है। The lies that say that, you can't do anything, you can't help it. और जो झूठ से कहा जाता है, हम कहते हैं अपने आप से कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, So no excuses. उसमें कोई भी सुलह नहीं है। Adultery is sin, and we must choose to expose that lie. और व्यभिचार जो है वो पाप है, और उस झूठ को बाहर लेकर समझना जरूरी है। And the second thing to do is recognize what caused it. और दूसरा ये है कि हम ढूंढ लें कि वो व्यभिचार हुआ तो क्यों हुआ, And eliminate that cause. और उस कारण को हमेशा के लिए हटा दे। And the last one is to cut off. आखिरी है कि उसमें से रिश्ता ही काट लें। Like, how many of you have seen people with diabetes who have affected their feet or their hands? और आप में से कितने लोगों को देखा है प्रमेह का बीमारी, शक्कर की बीमारी, प्रमेह बोलते हैं, शक्कर की बीमारी, Gangrene. मधुमेह की बीमारी होती है, और आपने देखा है चोट खाने के समय कभी कभी उनके उंगलियां या कुछ काटना पड़ता है। कितने लोगों ने देखा है ऐसे लोगों को? Why do you cut off that limb? उस भाग को क्यों काट दिया जाता है? So if that part is dead, if you don't cut it off, it will kill the rest of your hand or your leg. और अगर वो भाग को अगर ना काट दिया जाए, वो आपके बाकी हाथ को या पांव को
भी प्रभाव डाल सकता है। It's the same in adultery. और उसी प्रकार है व्यभिचार। You have to cut off the wrong relationship. और गलत रिश्ते को पूर्ण तरीके से काटना जरूरी है। If not, when you make excuses, it will still grow deeper and deeper in sin. और अगर आप उसके विषय में कुछ ना कुछ समाधान बोलते रहते हो, वो जो खराब रिश्ता है वो गहराई से गहराई में जाएगा। And that's when once you cut, you reverse your choices. और एक बार जब आप उस बात को काट देते हो तो आपके चुनाव को जो है आप पलट देते हो। And then also to deal with the temptation, I will just make one phone call. I will just send one message. और जो आपके अंदर जो लोभ विचार आते हैं, और जैसे एक फोन कॉल मैं करूंगा, एक बार बात कर लूंगा। So remember, if you give sin a small inch, it will take a mile. और अगर आप पाप को एक छोटा सा जगह देंगे, वो बहुत बड़ा जगह खा जाएगा। All right. Once Okay. you cut off, get help from either your pastor or a counselor or a spiritual mentor to deal with it. और जब आपने उस चीज में से आपने अपने आप को काट दी, उस आदत से काट दिया है, तो आप अपने पासबान से या अगुवे से या सहायक से, आप आत्मिक सहायक से परामर्श ले लें। Now, after adultery, reconciliation is something that can be attempted. और व्यभिचार के उसमें से बाहर के अब उसके बाद जो है एक समझौता के अनुभव में आ सकते हैं। So the spouse who has been betrayed can go through a whole lot of pain and grief. और वो व्यक्ति जो जीवन साथी जो व्यभिचार के अंदर से गुजरा हो या गुजरी हो, वो व्यक्ति जो है बहुत दर्द को महसूस कर सकते हैं। So they may need time उनको समय की जरूरत होता and है a lot of grace to handle what they're going through. और बहुत कृपा की जरूरत होती है कि उस परिस्थिति को संभालने के लिए। So the offended person needs to release forgiveness with a heart of love. और जो आघात पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसको जो है समय के साथ offended person will need to release forgiveness with a heart of love. और प्रेम के साथ जो है आहत पहुंचे हुए व्यक्ति को करना है। And the offender, the one who commits the adultery, और वो जो अपराधी है, जो व्यभिचार करता है, must choose to walk in love without retaliating. और उसको इस प्रकार से चलना है कि वो प्रेम के मनोभावना से रहें and deal with the problem. और उस चीजों से समाधान करें और उस चीजों के अनुसार रहें। And maybe even honor the decision of the spouse if they choose not to continue the marriage. और अगर वो जीवन साथी आगे चलकर शादी वैवाहिक जीवन को आगे जारी नहीं रखना चाहते हैं, उसको भी सम्मान दें। But reconciliation takes two people, the offender as well as the offended. और समाधान जो है अपराधी और आहत पहुंचे वाले व्यक्ति के बीच में होता है। Sometimes if that doesn't happen, the offender must be patient. कभी-कभी ऐसा अगर नहीं हुआ तो जो अपराधी है उसको इंतजार करना चाहिए। Okay? So let's look at what are some ways we can keep some boundaries. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कुछ सीमाओं को रख सकते हैं। So the first one is maintain emotional and sexual fulfillment only inside your marriage. और आप पहला है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में ही एक भावनात्मक और शारीरिक संबंध को बनाए रखें। So do fun things in your marriage. आपके शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में आनंदमय बातें करें। Enjoy your time together. आप एक साथ का समय जो है उसका आनंद उठाएं। Okay. The second one is don't do anything that you don't want your spouse to do. और वो
वो कार्य को ना करें जो आपके जीवन साथी नहीं चाहते हैं। Like, for example, saying hello to your old girlfriend or boyfriend. उदाहरण से आपके पुराने प्रेमिका या प्रेमी के साथ हाय हेलो करना। Okay? ठीक है। Third one is avoid being away from your spouse for long periods of time. और तीसरा है कि अपने जीवन साथी के से बहुत समय के लिए दूर ना रहें। The next one is if you're working, try not to pair up with someone of the opposite sex for for business trips for just the two of you. और अगर आप काम करते हैं और कोई बिजनेस व्यापार के यात्रा में जाते हैं, कोशिश करें कि ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ यात्रा ना करें। Okay. Then don't take rides on bike or in the car alone. और अकेले जो है गाड़ी में यात्रा ना करें, Other than your spouse. अपने बीवी के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ। Okay. Be careful of how you use social media. और सोशल मीडिया जो है उसको किस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान पूर्वक रहें। Be open about passwords. पासवर्ड्स जो उसमें रहते हैं उसके बारे में एक दूसरों के प्रति खुला रहें। ईमेल के बारे में। Okay. Then keep your internal boundaries. That is what you think about other people. आंदरूनिक जो सीमा है उसके बारे में ध्यान से रहें कि आप दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। Don't give open compliments to those of the opposite sex. और ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं उनके विषय में खुला प्रोत्साहन के पदों को ना दें। Okay. Don't express your feeling to somebody else. और आपके भावना जो है पत्नी को छोड़ दूसरों के प्रति ना दिखाएं। Don't flirt. और चिकनी चुपड़ी बातें ना करें। And don't play with somebody else's emotions. और दूसरे व्यक्ति के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। Stay away from any kind of pornography or sexually related material. और लैंगिक संबंधित चीजों के साथ या अश्लील चित्रों के विषय से दूर रहें। Don't counsel people in private, those of the opposite sex in और private. ऑपोजिट सेक्स के लोगों को जब आप परामर्श दें तो उसको एक बंद रीति से ना करें, प्राइवेट में ना करें। Don't discuss personal problems with someone of the opposite sex. और ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ अपनी निजी परेशानियों को बांटे ना। Cut off all old relationships with people you've had, especially love relationships. और जो भी प्रेम के रिश्ते थे किसी व्यक्ति के साथ, उस जैसे व्यक्तियों के साथ अपना संबंध पूर्ण तरीके से बंद कर दें, काट लें। Okay. ठीक है। All right. Any questions? कोई सवाल? कोई सवाल? अपने में सवाल मत पूछिए, मैम से पूछ लीजिए। Very quiet the room is today. आज रूम बहुत शांत है। Break दीजिए. Okay, let's have a break then. ब्रेक ले लेंगे और 4 बजे वापस